बर्फ से ढके कश्मीर के पहाड़ से लेकर राजस्थान का रेगिस्तान, गोवा के बीच से लेकर अयोध्या का राम मंदिर, भारत के पास टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी ट्रैवल डायरी है। भारत अपने कल्चर, वेलनेस, एडवेंचर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। भारत ग्लोबली टूरिज्म हब बनकर उभर रहा है। ऐसे में मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग को बेहतर करने के लिए भारत सरकार को बजट में क्या कदम उठाने होंगे, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है सुभाष गोयल जी। सब मनी कंट्रोल हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बजट से क्या डिमांड्स हैं। देखिए, हमारी सिर्फ दो ही डिमांड्स होती हैं मेनली। एक तो सबसे बड़ी हमारी डिमांड है जो टीसीएस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करा था 20% ऑन आउटबाउंड ट्रैवल। हम्म। दैट शुड बी removed. ओके। Why it should be removed? Because India, no country in the world is taxing outbound travel, हम्म। right? हम्म। India wants to become a hub of the world हम्म। in aviation. हम्म। Next year, we'll be buying about 2,300 aeroplanes. हम्म। So, if India has to become a hub, airlines have to operate to and from India. हम्म। It is not just one way के inbound tourism आ गया और outbound जाएगा नहीं। हम्म। तो उसकी वजह से क्या होगा कि airlines will not, their routes will not be viable and India cannot become a hub. हम्म। So that is very important. Secondly, हम्म। you see, outbound tourism is a soft power of India. For जी। example, जैसे मालदीव ने they started misbehaving, and uh, started insulting our prime minister, India out, slogans and all. And then we immediately boycotted outbound tourists boycotted Maldives. हम्म। So their economy got shaken, and their operators from there have been calling us, writing letters to us that no, we are not, with the present governments. This we are pro India and all that. So this is a soft power that India outbound has. हम्म। Today, Indians are the largest spenders in Malaysia, in Singapore, in Sri Lanka, in Dubai, in Switzerland, in London. So the spending power of Indians is quite a lot, and जी। we can use this for our political advantage. But हम्म। if we start taxing outbound travel, हम्म। then one, it will be a hindrance, and secondly, we will lose on that power that we have. हम्म। Third reason why हम्म। outbound travel, this TCS should not be there, हम्म। is that who are the people who are traveling abroad? You know, exporters, they participate in various trade shows, exhibitions, tour operators, they participate in, various international shows. And during that time, they have to entertain people, they have to spend a lot of money. So the 7 lakh rupees slab is too little. And they will have to spend a lot of, and if that is going to be further taxed, then you see the Indian exporter is losing its competitive edge over other countries, who are competing with India, like China and many other countries. So outbound travel should not be taxed. Uh, Thirdly, what is happening is that because of this, you see, unfortunately, a lot of people will be asking their friends and relatives to pay by credit card because there will be no TCS on that. And that will result in Hawala and a lot of other unhealthy practices. So, as a tourism industry, we appeal to the government that there should be, rationalization of taxes. And on inbound tourism also, you see, we are outpricing ourselves by having 18% tax, and then there is tax on tax because there is a road tax, there is, luxury tax, there is so many other taxes. So our suggestion is that, like all tourism promoting countries in the world, there should be a 5% maximum tax on tourism, whether it's hotels, whether it is trade shows, whether it is tour operators or travel agents, and it should not be carried forward. Once a tax is there of 5%, everyone will gladly pay it. Now, when you make, these 18% GST, IST, and then luxury tax and all that, that makes the Indian, as it is, the Indian hotel rates are skyrocketing.
And on top right. of that, the 18% tax and then luxury tax and service charges. Hmm. This all makes, a very big dent on inbound tourism. Right. So, you see, with rationalization of taxes, when we say that there is one country, one tax, so that tax on the tourism industry, Hmm. whether it is outbound or inbound, should not be more than 5%, because 5% people can absorb. Right. But if you do a 20% tax and on if you Hmm. refund it, we are not tax collectors for the government. Right. Right? We can't be maintaining those accounts. Hmm. And then we start getting from corrupt officers unnecessary notices and they Hmm. start harassing us. Hmm. So I think if you simplify, Modi government is doing a lot in bringing transparency and rooting out corruption. Then I think the best thing that this government can do is uh, have a standard tax of 5%, and everything should be on the net, and people should be willing to pay it, and this inspector Raj should not be there. जी सर, मेरा अगला सवाल है कि हमें मतलब खासकर गवर्नमेंट को ऐसे क्या कदम उठाने होंगे कि भारत, जैसे हम कहते हैं कि बिग टूरिज्म डेस्टिनेशन बने, खासकर विदेशी टूरिस्ट के लिए। देखो, भारत के मुकाबले की मैं 130-40 कंट्रीज घुमा हूँ। हम्म। दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सकती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंडियन हूँ, पर हम्म। आप देखिए, 75% स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन सिर्फ भारत में है। हम्म। 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन भारत में है। हम्म। ओनली लिविंग डेजर्ट राजस्थान का मोस्ट कलरफुल डेजर्ट है। हम 4 धर्मों का जन्म स्थान है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। और सूफीज्म, जो कि स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम है, वो भी हिंदुस्तान में फ्लरिश करता है। और मदर टेरेसा, जो कैथलिक मॉडर्न सेंट है, शी इज ऑल्सो इन कैलकाटा। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ पिलग्रिमेज टूरिज्म से, क्योंकि अब देखिए आपने राम जन्मभूमि का वो करा है, जी। तो पिलग्रिमेज टूरिज्म से ही हम पूरी अपनी 5 ईयर प्लान्स को फाइनेंस कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि इतने पिलग्रिम्स आएंगे, इतना वो आएगा, पर अगर हम होटल्स में 18-20% टैक्स करेंगे और हम्म। फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, हम्म। तो एक सिर्फ हम सिंप्लीफाइड 5% टैक्स रखें हम्म। होटल्स पे, ट्रांसपोर्ट टूर ऑपरेटर्स या पूरे पैकेज के ऊपर। ये ना हम्म। हो कि होटल अलग टैक्स दे रहा है, फिर हम उसका पैकेज जो बना रहे हैं, पैकेज के ऊपर अलग टैक्स है, और फिर ट्रांसपोर्ट के ऊपर अलग टैक्स है। तो विद द रिजल्ट, अगर $100 का पैकेज है तो उसमें 30 से 40 डॉलर टैक्सेस के हैं। तो इसलिए हम इंडिया को प्रोहिबिटिव करना चाह रहे हैं। और अभी ये बड़ी दुख की बात है कि टैक्सेस की वजह से और रेड टेप की वजह से अ, हम और इतने एक्सपेंसिव हमारे होटल्स हो गए हैं टैक्सेस की वजह से, और हमारे एयर फेयर्स हो गए हैं, दैट इट इज डिस्करेजिंग हम्म। फॉरेन टूरिस्ट टू। तो हम्म। वो कहे के बजाय आने के लिए चलो हम टीवी पे देख लेंगे। जी। तो मतलब ये है कि हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, हमें हम्म। ओपन स्काई करना है, ताकि एयर फेयर्स कम हो, सप्लाई बढ़ानी है, हम्म। और होटल्स की भी सप्लाई बढ़ानी है। और टैक्सेस हमें 5% से ज्यादा, नहीं। चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी टैक्स हो, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ट्रांजैक्शन टैक्स लगा सकते हो, जो बैंकिंग में है, जितने बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके ऊपर टैक्स लगाओ। दैट विल गिव यू मोर मनी, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, बजाय आप इतने जो सारे हैवी टैक्सेस कर रहे हो। तो जी। मेरी अपील भारत सरकार से यही है कि चाहे इनबाउंड हो, चाहे आउटबाउंड हो, चाहे होटल्स हो, चाहे कुछ भी हो, पूरे इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि इस देश की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? देश की सबसे ज्यादा जरूरत है गरीबी हटाना। गरीबी कैसे हटेगी? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, रोजगार से हटेगी। रोजगार सबसे ज्यादा टूरिज्म से निकलते हैं, क्योंकि टूरिज्म एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। जी। जैसे टूरिस्ट कोई आता है, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूटर टैक्सी चाहिए, बेल बॉय चाहिए, पोर्टर चाहिए। होटलों में भी उनको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। मतलब कोई अंडे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई एयर कंडीशनिंग टेक रहा है, कोई टेक्निकल कर रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है। तो टूरिज्म का पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे इफेक्ट होता है। इसलिए टूरिज्म को हमें एक प्रेफरेंशियल टैक्स ऑफ 5% पे करना चाहिए, उससे ज्यादा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए।
सर, टूरिस्ट के लिए सभी सैलानियों के लिए एक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री में मतलब विदेशी सैलानियों को बढ़ाने की बात करते हैं, और मतलब विदेशी सैलानी जो है एक बड़ा मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ाने में उनका एक बड़ा हाथ है हमारे देश के लिए। तो ऐसे में उनके लिए सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो क्या आपको लगता है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी पर भी सरकार को फोकस बढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए, इस टाइम इंडिया कंपेयर टू 8 साल पहले या 7 साल पहले, इंडिया बहुत सिक्योर है। हम्म। कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं हो रहा, और सारा कुछ, इवन कश्मीर में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग गए हैं। जी। और मिलियन टूरिस्ट से ऊपर कश्मीर में जा चुका है। हम्म। तो अगर कश्मीर कंप्लीटली सिक्योर है तो पूरा भारत सारा सिक्योर है। जी। तो मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू है। हम्म। इशू जो है वो सबसे ज्यादा ये है कि हैसल्स का, कि टूरिस्ट को हैसल नहीं होना चाहिए। हम्म। अब इंटरनेशनल फ्लाइट से आता है, उसके 30 किलोज होते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट पे उसको 15 किलो या 20 किलो करते हैं, और फिर वो उसमें हैसल होती है। सिमिलरली एयर फेयर्स बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग है, हम्म। और कोई स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं। हम्म। टूरिस्ट आता है ये सोच के कि दिल्ली बॉम्बे में 8,000 की टिकट मिलेगी, पर अगर बॉम्बे में कोई क्रिकेट मैच हो गया या कोई हम्म। फेस्टिवल हो गया, हम्म। वो टिकटें जो है एक हम्म। लाख रुपए तक पहुंच जाती हम्म। हैं। तो अगर हम एयर फेयर्स को, हमें कुछ थोड़ा बहुत अपर कैपिंग और रेगुलेशन करना चाहिए। हम्म। अगर हम टैक्सी ड्राइवर्स को रेगुलेट कर सकते हैं, एयरपोर्ट से होटल आते हैं उनके हम कैपिंग लगा सकते हैं, तो हम एयरलाइंस पे और होटल्स पे क्यों नहीं लगा सकते? सर, अभी राम मंदिर की मतलब उद्घाटन हुआ है, और कहा जा रहा है कि मतलब वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे लिए होगा, इंटरनेशनल टूरिस्ट टूरिस्ट के लिए भी और डोमेस्टिक के लिए भी। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कि आगे जो अयोध्या है वो ताजमहल से बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट होगा? अयोध्या, देखिए, वर्ल्ड का मैक्सिमम टूरिस्ट इस टाइम गोल्डन टेम्पल में आ रहा है। और जी। गोल्डन टेम्पल में इतनी बढ़िया उनकी वो है मैनेजमेंट, कोई हम्म। वीआईपी दर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, हर आदमी सेम है। हम्म। तो मुझे उम्मीद है कि अयोध्या एक रेवोल्यूशन और अवेकनिंग हुई है हम्म। सनातन धर्म और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम्म। और ये एक मुझे लगता है कि गोल्डन टेम्पल की तरह वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। जी। और इसके लिए हमें वॉर फुटिंग के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे लोगों को। हम्म। और जो जमीन की कीमतें इस टाइम बढ़ी हुई हैं, यूपी टूरिज्म को कुछ लैंड बैंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि होटल्स को इतना महंगा ना हो वहां पर, क्योंकि फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, फिर वो स्काई रॉकेटिंग पैसे चार्ज करेंगे तो वो डिस्करेज हो जाएगी। जी। और एक बहुत जबरदस्त सर्किट बन गया है, हम्म। वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद एंड उसके बाद अयोध्या। जी। तो एक जैसे दिल्ली आगरा जयपुर एक गोल्डन ट्रायंगल बन गया था, ये गोल्डन ट्रायंगल सर्किट बन गया है। हम्म। और अयोध्या की जो पब्लिसिटी हुई है और जो लॉन्च हुआ है, और 200 कई 100 सालों के बाद हम्म। राम जन्मभूमि में बहुत जबरदस्त टेम्पल बना है। तो हम्म। इससे सिर्फ पूरे भारत से नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी, इस टाइम जितने एनआरआईज हैं वो सारे अयोध्या आना चाह रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा है कि भाई अभी थोड़ा रश कम हो जाए, थोड़ी फैसिलिटीज और बढ़ जाए, तो आप आराम से प्लान करिए। बट यस, हमारी ऑर्डर बुक्स पूरे साल के लिए फुल है अयोध्या के लिए, ओके। और बहुत ज़्यादा डिमांड है अयोध्या की। और ये बहुत ही अच्छा हुआ है जिस तरीके से सरदार पटेल के स्टैचू एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया, और पूरे एरिया को बहुत उसका बेनिफिट मिला है गुजरात में। इसी तरीके से यूपी में अयोध्या के बनने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जी। और मैं हमारे प्रधानमंत्री को और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत वॉर फुटिंग के ऊपर काम करा है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन गया है, वर्ल्ड जी। क्लास रेलवे स्टेशन बन गया है, रोड्स वर्ल्ड क्लास हो गई हैं। और थोड़ी हमें होटल्स की और अकोमोडेशन की जरूरत है, जो भी वॉर फुटिंग पे हो रही है। होम स्टेज बड़ी अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अयोध्या भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पिलग्रिमेज टूरिज्म होगा। जी। जी।
सर हम उम्मीद करते हैं कि भारत में इसी तरीके से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो ताजमहल हो, अयोध्या हो, ये उतने ही अच्छे तरीके से डेवलप हो, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उसी तरीके से काम हो। और टूरिस्ट की सेफ्टी के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स सरकार कम करे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सर।